You are audible. Okay. Okay. Just give 1 minute. Is getting recorded, right? This is getting recorded. Is it Yes, yes, okay? yes. Let's record it. Yeah, I think let's record it. And Mhm. then if I end up saying something funny, then we can revisit. Yeah. No, Okay. we'll send. I think there is a provision to send it and get the edits and all of that. Just in case, because sometimes you know how it is. Yeah. बात करते करते. But once we start, we can then start the recording instead of like right now, actually. Sure. You know? Krishna, to this. I welcome everyone to this webinar on with Professor Ritika Khera on her. It's a book discussion on her new book in Hindi called Revri Ya Haq Samajik Suraksha Par Ek Nazariya. We have done one or two of these webinars as part of the newly launched MSc in Development Practice / Studies program that will launch from August in Jindal Global University in its Delhi campus. So today we are having a slightly different session than just a talk, which is a book discussion with Ritika's new book, which is this Revri Ya Haq Samajik Suraksha Par Ek Nazariya. And she was actually here in Jindal on 8 February, if I remember, in a discussion on scholarship as a vocation. And the next day, 9th February, in the Delhi Book Fair, the book was inaugurated, launched with a discussion there. It's by Raj Kamal, so there was a discussion there. And so today we're very happy to have her here with us. So there's to Professor Ritika is a development economist whose work focuses on social policy questions of various kinds, and this book kind of also summarizes and touches over a lot of them, which includes health and nutrition questions, education, social protection, employment, poverty, inequality, and recently, for the last few years, the impact of digital technologies on all of these questions, and also questions of social inequality, including caste. Her work, she is a prolific public intellectual as well, and her work has shaped several policy debates around India's public services. And this book is kind of a summation of over 2 decades of field studies and social audits and research for action of India's public services of various kinds. The book itself, it's a it has emerged out of over these 20 years of primary surveys, social audits, reflections on social policies, with
Professor Khera and various collaborators that she has worked with over time. We are joined here today to discuss the book with three faculty of Jindal: Professor Divya Gupta, who is an associate professor at Jindal Global Law School; Professor Monica Bora, who is also in the Jindal Global Law School, works as an assistant professor; and Tahiba Banu, who is a lecturer at IDIAS, the Office of Interdisciplinary Studies at Jindal University. So the format would be of the discussion. It's from 11:35 now. We hope to do 1.5 hours roughly of discussion. And Professor Ritika would go first, and I'd ask you to present, and then the other discussions will come in with comments on sections of the book, and we can take it forward from there. So Professor Ritika, up to you. Thanks, Nayan, for organizing this. Now just tell me, should I present in Hindi or English? I think you can do both, a combination. Okay, fine. Let me at least start my, I'll project my slides. I've done a shortish slide show. Okay, can you see it? Yes. Yes, yes, we Okay, can see it. okay. So let me start a little bit in English, I suppose, and then I'll keep switching between the two if that's okay. Yes. I'm happy to stick to one or the other if there's somebody who doesn't have one of the two. ठीक है, तो I thought I'll give a brief overview of the book. तो जो उसका फॉर्मेट है, आउटलाइन है, शुरुआत में एक ओपनिंग चैप्टर में जो बड़े डिबेट्स हैं जो बार बार पिछले 20 सालों में आते रहे हैं और जिस पर एक तरह से सहमति भी नहीं हो पाई है, वो थोड़ी सी डिबेट्स हैं 3-4, जिसमें उदाहरण के लिए एक है कि जब सरकार की तरफ से कोई भी प्रोग्राम आता है, किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसमें उसे टारगेटेड होना चाहिए कि यूनिवर्सल होना चाहिए, क्या केवल सो कॉल्ड गरीब लोगों को लाभ मिलना चाहिए या सभी के लिए लाभ होना चाहिए। तो इस तरह की 3-4 डिबेट्स हैं। उसके बाद के जो 5-6-7 चैप्टर्स हैं उसमें केंद्र सरकार की, आमतौर पे सिर्फ एक को छोड़ के केंद्र सरकार की वो योजनाएं हैं जो एक तरह से हमारे सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को बांधती हैं। तो इसमें कोशिश की गई है कि हम इन योजनाओं को अलग अलग ना देखें, बल्कि एक ढांचे के रूप में समझें और वो एक दूसरे को किस तरह से समर्थन देती हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो हम थोड़ा बहुत समझें। तो इसमें जैसे स्लाइड में लिखा है, क्रेडल टू ग्रेव का ढांचा धीरे धीरे उभर रहा है देश में, जिसमें जब महिला गर्भवती है तो उसके लिए मातृत्व लाभ है। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 6 साल की उम्र तक उसके लिए आंगनबाड़ियों में 5-6 तरह की सुविधाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और पोषण भी है। फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में शिक्षा की सुविधा है, साथ में मध्याह्न भोजन उस शिक्षा को किस तरह से मजबूत और कारगर करने में मदद करता है उसके बारे में है। फिर जो परिवार हैं उनके लिए 2 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें जन वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा लोगों को सस्ता अनाज मिलता है, और दूसरी तरफ रोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, जिसमें परिवार के बड़ों को, वयस्कों को 100 दिन का काम साल में मिलने का प्रावधान है। उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रावधान है। वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल बूढ़ों के लिए नहीं है, वृद्धों के लिए नहीं है, वो विकलांग लोगों के लिए भी है और एकल महिलाओं के लिए भी है। तो जो भी जिनकी भी
पारिवारिक स्थिति थोड़ी कमजोर है किसी भी वजह से, उनके लिए पारिवारिक नहीं, उनकी खुद की स्थिति कमजोर है, उनके लिए ये पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का की योजना है। जो आखिरी स्कीम है उसमें कैंटीन योजना है। वो एक्चुअली केंद्र सरकार की योजना नहीं है, लेकिन काफी राज्यों में ये कैंटीन्स चल रही हैं। कैंटीन्स यानी वहां पे 5 से 8 रुपए में, या जैसे तमिलनाडु में तो 1 रुपए की एक इडली मिलती है। राजस्थान में कोविड के दौरान शुरू हुआ था इंदिरा रसोई की योजना, जिसमें 8 रुपए में लोगों को 5 या 6 रोटियां और साथ में सब्जी दाल या कड़ी मिलती है, पका खाना। और शहर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चौराहे पे जहाँ पे मजदूर खड़े रहते हैं, इस तरह की जगहों पर ये कैंटीन्स चलाई गई। तो वो अभी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ी सी अलग है बाकियों में। लेकिन ये जो ढांचा है इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के को छोड़कर जो बाकी केंद्र की योजनाएं हैं वो सभी कानून के तहत लाई गई हैं। तो जो खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में पारित हुआ, उसमें 4 योजनाएं थी: मातृत्व लाभ, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और जन वितरण प्रणाली। और इसी के साथ फिर उससे पहले जो कानून पारित हुआ था नरेगा वाला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 में, तो ये 5 योजनाएं कानूनी हक हैं। इनके तहत जो सेवाएं या सुविधाएं लोगों को मिलती हैं वो लोगों का कानूनी हक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एक्चुअली कैंटीन्स भी, इन दोनों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उस समय की सरकार नहीं मानी। तो जो पेंशन योजना है वो केंद्र की योजना चल रही है, और जो कैंटीन है वो काफी राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, और उसको कानूनी जामा नहीं बनाया गया। किताब में एक चैप्टर में स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी थोड़ी सी चर्चा है। एक्चुअली स्वास्थ्य और शिक्षा पे अलग से अच्छे से लिखने की जरूरत है, लेकिन मेरा खुद का काम इन पे कम था, इसलिए मैंने उसको कोविड के दौरान जो सारी इनमें कमियां हैं, इनकी वीकनेसेस हैं, वो काफी सामने आई। तो कोविड के लेंस से उन कमियों को, उन फेलियर्स को सिर्फ एक लिस्ट किया है इस चैप्टर में। और आखिर में 2 जो चैप्टर्स हैं, एक में वो उभरते हुए मुद्दे जो हैं, जिसमें डेटा का अभाव, जिससे हम जमीनी स्थिति को समझ सकें, कैश ट्रांसफर बहुत ज्यादा, नकद हस्तांतरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किस तरह से इन योजनाओं में कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है, और वो एक तरह से अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं इस खर्च में, सरकारी खर्च में। जो लोगों के लिए खर्च है उसमें वो अपना हिस्सा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह के 5-6 मुद्दे हैं। और फिर आखिरी जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें पैसे के बारे में बात की गई है, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि हाँ ये करना जरूर चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इस पे हम कितना खर्च कर रहे हैं वास्तव में, उसको भी लेके काफी लोगों के दिमाग में भ्रम है, उनको लगता है बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअलाइज करने की कोशिश की गई है। तो ये तो किताब की रूपरेखा है। मुद्दे, वैसे तो किताब स्कीम वाइज चलती है, हर स्कीम में उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों जरूरी है, और उसके क्रियान्वयन में क्या क्या कमियां रह गई, और जहां पे वो अच्छे से चल रही है तो वहां पर उसके अच्छे से चलने से लोगों को किस तरह के लाभ हो रहे हैं, उन सारे मुद्दों को कवर किया है। लेकिन इन सभी स्कीमों में कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, और उनको भी समझने की कोशिश है। तो एक मुद्दा है कि क्या हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एक्चुअली वो टाइटल से ही थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये जो इसको रेवड़ी कहने लगे हैं, और उससे एक तरह से
एक अवधारणा बनी है लोगों के दिमाग में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है गरीबों पर। तो उस पे थोड़ा सा डेटा के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश है कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दूसरे मुल्कों से अगर हम अपनी तुलना करें तो हमारा देश कितना खर्च कर रहा है इस तरह के योजनाओं पे। दूसरा मुद्दा है कि किस तरह से हमारी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश में वो इसमें बहुत साफ तरीके से झलकते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और विस्तृत बाद में बात कर रही हूँ। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि यही कि ये जो सारे खर्च होते हैं उसमें भ्रष्टाचार है, वो लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। एक कोई पुराना राजीव गांधी वाला है कि 15 पैसे लोगों तक 1 रुपए में से पहुंचते हैं। अब वास्तव में इन सभी योजनाओं में पिछले 20 वर्षों में बहुत बदलाव आया है और आमतौर पर ये बदलाव सुधार की दिशा में आया है। ऑफ कोर्स बहुत राज्यों में अंतर है, अंतर राज्यों में बहुत अंतर है और कहीं कहीं पर बेहतर होके फिर से भी खराब हो सकती है स्थिति। लेकिन अगर हम मोटा मोटी पिक्चर देखें तो ये दिखता है कि ये सभी चीजों में सुधार की तरफ बहुत सारे राज्य बढ़ रहे हैं। और चौथा एक मुद्दा है कि क्योंकि केंद्र सरकार का हाथ तंग हुआ है पिछले 10 सालों में, और पहले भी तंग ही था, ऐसे नहीं था, पहले बहुत उदार था। तो उसकी वजह से राज्यों ने अपनी तरफ से बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम एक दो योजनाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो पहला जो मुद्दा है कि इज द स्टेट टू बिग इन इंडिया। तो ये जो चार्ट है, एक सेकेंड मैं इस ओ एक ये बड़ी प्रॉब्लम है सो एक्चुअली आई एम सॉरी, इसमें जो लेबल्स हैं ना कंट्री के वो सब हट गए हैं, लेकिन जो लाल वाली लकीर है वो इंडिया है और जो बाकी सब लाइंस हैं वो जर्मनी, यूएसए, यूके, फ्रांस, एक साउथ अफ्रीका है जो भारत से काफी पास चल रहा है अंत के सालों में, वो साउथ अफ्रीका है। और बाकी ऊपर वाले 3 जो देश हैं वो फ्रांस, यूएस और यूके हैं। 1900 से लेकर 2022 तक एक ही सिंपल सा वेरिएबल प्लॉट किया है कि सरकार जीडीपी में सरकारी खर्च का हिस्सा कितना है। तो आप शुरुआत के सालों में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 10% के आसपास था, और अंत में अगर आ जाए हम 120 साल आगे तो ये कुछ देशों में तो बहुत ज्यादा है, 50% से भी ऊपर है, और भारत में ये 30% के आसपास है, जो अमेरिका से बहुत फर्क नहीं है। लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप जीडीपी में काफी मजबूत है, और औरों से तुलना करें तो हमारे देश में कम ही है, ज्यादा नहीं है। दूसरा ये भी ऑब्वियसली बाकी सारी चर्चा किताब में है, लेकिन ये भी उसमें थोड़ा बात की है कि सरकार को कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, किन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश है और उसके लिए अच्छे कारण भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा है। दूसरा कभी कभी लोगों को लगता है कि हमें इन बाकी सब देशों से ना तुलना करके आस पड़ोस के देशों से भी करना चाहिए। इस चार्ट को मैं बाद में अगर मौका मिलेगा तो मैं वापस आऊंगी। दूसरा जो मुद्दा है, मैंने कहा कि सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, के जो सक्षम वर्ग है देश में वो बेसिकली सब कुछ अपने लिए पहले कर लेता है, और जब वो उनका पेट भर जाए इन अ सेंस तब फिर औरों की बात होती है। तो ये वाला जो चार्ट है इससे मातृत्व लाभ के संदर्भ में जो दूसरा वाला अध्याय है ये थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इसमें है कि फुल कॉम्पेंसेशन मतलब आपको पूरी तनख्वाह पे कितने हफ्तों की छुट्टी मिलती है अगर आप गर्भवती हैं। महिलाओं के मातृत्व लाभ के बारे में ये चार्ट है। तो दुनिया में सबसे कम है अमेरिका, वहां पे कानून भी नहीं है, मतलब
फेडरल कानून नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में अपना कानून जरूर होगा, लेकिन सेंट्रल कोई भी लॉ नहीं है जिससे महिलाओं को अवकाश गर्भवती होने के समय प्राप्त हो, जिसमें उन्हें अपना वेतन मिले। सबसे ज्यादा रोमानिया में है, उसमें उनको ऑलमोस्ट 90 हफ्तों का अवकाश पूरी तनख्वाह के साथ मिलता है। आई डोंट रियली नो मच अबाउट रोमानिया, पर ये जो डेटाबेस है उसके अनुसार, पर उसके एक्चुअली मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द बाकी जो इसमें है, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार 14 हफ्तों का होना चाहिए। उनका बेंचमार्क है 14 हफ्ते की छुट्टी जिसमें उनको पूरी तनख्वाह मिले। भारत में 2 भारत है इस नजरिए से अगर देखें। एक है संगठित क्षेत्र, उनके लिए कानून 61 में बना, 2017 में उसका संशोधन हुआ, और उस संशोधन के बाद 26 हफ्ते की फुल कॉम्पेंसेशन पूरी तनख्वाह के साथ महिलाओं को छुट्टी मिलती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं हमारी, उनको केवल 5,000 या 6,000 रुपए का प्रावधान है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। अगर हम प्रतिदिन की 400 रुपए की मजदूरी लें तो दैट कम्स टू अबाउट 2 हफ्ते का फुल कॉम्पेंसेशन। और इसे अगर हम देखें तो भारत की जो संगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं मेरे जैसी, उनको फ्रांस से भी ज्यादा मिल रहा है, जहाँ पे 20 हफ्तों का अवकाश है पूरी तनख्वाह के साथ। तो इससे भी आई थिंक ये थोड़ा बात समझ आती है कि किस तरह से एक वर्ग के लिए सब कुछ है और वो फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार है, लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की आबादी का, उनके लिए ना के बराबर है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ उस मायने में संगठित क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा पा रही हैं कि उनको 26 हफ्तों का अवकाश पूरी तनख्वाह के साथ मिलता है, जब वो अवकाश पे जाती हैं तो उनका रोजगार सुरक्षित रहता है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। बहुत कम हफ्तों का उनको मिल रहा है, और वो भी बहुत कम हमने रेट लगाया है। जैसे मेरी तनख्वाह और 400 रुपए में प्रतिदिन में बहुत ज्यादा फर्क है। पेंशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम है। जो दाएं हाथ में नीचे का टेबल है उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन्स हैं, संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है। तो जो संगठित क्षेत्र है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, उनको काफी अच्छी पेंशन मिल जाती है। ये जरूर है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कुछ तरह की दिक्कतें हैं, जिसमें बहुत वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 200 केंद्र सरकार की तरफ से 200 से 500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं लोगों को पेंशन के नाम पे। इस पे आगे भी हम बात कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा था कि बदलाव आया है, और आमतौर पे या काफी जगह और काफी योजनाओं में ये बदलाव सुधार की तरफ है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट सिर्फ निकाल लिया जिसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे मेरे लिए दाएं हाथ में 2005-06 वाला मैप है, बीच में 15-16 का, और फिर 19 और 21 2019-21 का मैप है, जिसमें उन बच्चों का अनुपात है जिन्हें ICDS से, आंगनवाड़ी योजना से कोई ना कोई सेवा प्राप्त हुई, कितने प्रतिशत को। तो आप देख सकते हैं कि जैसा वो रंग गहरा होता जा रहा है मैप का राज्यों का, उसका ये मतलब है कि और बच्चों ने, माओ ने कहा कि उनके बच्चों को आंगनबाड़ी से कोई ना कोई सेवा प्राप्त हुई, जिससे ये संकेत मिलता है कि आंगनबाड़ियां और कारगर हुई हैं और मतलब सक्रिय रूप से चल रही हैं। इसी से सॉर्ट ऑफ जुड़ा हुआ है कि काफी योजनाओं में एक रीजनल पैटर्न है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि हमेशा दक्षिण के राज्यों में जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होते हैं, और जो उत्तर भारत का जो प्लेन्स वाला रीजन है उसमें काफी गुंजाइश है सुधार की। तो इसमें 2 योजनाओं का है, एक में मातृत्व लाभ
और दूसरे में जन वितरण प्रणाली में चोरी। तो जहां चोरी ज्यादा है वहां रंग गहरा है, और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के काफी सारे राज्यों में रंग गहरा है। और दूसरी ओर ये जो मातृत्व लाभ है वहां पर कितने प्रतिशत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्राप्त हुआ, वो जितना ज्यादा होगा उतना रंग गहरा होगा। और दक्षिण भारत के राज्यों में राज्यों का रंग गहरा है, मतलब 60-70% महिलाओं को अपने मातृत्व लाभ प्राप्त हुए। और आखिरी मुद्दा, एंड देन आई कैन स्टॉप, इज किस तरह से केंद्र सरकार का हाथ थोड़ा तंग हो रहा है, और उसको काफी हद तक राज्य सरकारें उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसके लिए ये वृद्धावस्था वाले 2 मैप्स हैं। जो 7.2 है उसमें ये दिखाया गया है कि कितने वृद्धों को पेंशन मिल रही है। तो यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन काफी राज्यों में काफी हद तक वो वृद्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया एवरेज 48% है, नीचे बिल्कुल मैप के नीचे लिखा गया है। और तो मतलब लगभग आधे वृद्धों को पेंशन मिल रही है, जिसमें गहरे रंग वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। तो इन राज्यों में 70 से 90% वृद्धों को पेंशन मिल रही है, जो काफी अच्छा कवरेज हम मान सकते हैं। दूसरा जो मैप है उससे ये पता चलेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार नहीं, एक्चुअली राज्य सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो कुल पेंशन प्राप्त लोग हैं उसमें से 85%, अब मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, 85% ऐसे हैं जिनको स्टेट पेंशन दे रही है, राजस्थान राज्य से पेंशन प्राप्त हो रही है। बाकी के जो 15% हैं वो केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कैप लगाया हुआ है कवरेज पे, वो 2000 पता नहीं 15-20 सालों से उन्होंने वो कैप को रिलैक्स नहीं किया। और जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जा रहे हैं तो उनको जरूरत है, तो इसलिए स्टेट्स ने, राज्यों ने कहा कि हम अपने बजट से बूढ़ों को पेंशन देंगे। इसी तरह राजस्थान की तरह उड़ीसा में भी काफी इस पर काम हुआ है। वहां पर 62% पेंशन धारक बूढ़े लोग राज्य सरकार की मधु बाबू पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ये तो एक तरीका है जहां पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन बहुत है। दूसरा ये भी है कि क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से केवल 200 से 500 रुपए दिए जा रहे हैं पेंशन के नाम पर, ये जो सारे स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से उस पेंशन को टॉप अप करते हैं। तो जैसे आजकल उड़ीसा में पेंशन 1000 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए तो सीधा केंद्र सरकार, सॉरी, राज्य सरकार दे रही है। लेकिन जो 60 साल से 80 साल के हैं उनको केंद्र सरकार से सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। तो इनफैक्ट उनके लिए केंद्र सरकार 800 रुपए टॉप अप कर रही है। हाँ, सो मैक्सिमम टॉप अप इज 800 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों तरीकों से राज्य सरकारें पेंशन योजना में लोगों को जोड़ रही हैं और उसमें पेंशन को थोड़ा बढ़ा रही हैं, ताकि वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल तो नहीं कह सकते, पर कम से कम उनकी इंसल्ट ना हो। किसी को आप 200 रुपए के लिए इधर उधर बुढ़ापे में भगाएं, वो मेरे अनुसार उसकी इंसल्ट के बराबर ही है। तो इसी तरह से अन्य स्कीम्स, योजनाओं में भी राज्य सरकारों का योगदान है। कुछ राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को तेल और दाल भी दिए जा रहे हैं। कहीं पर नरेगा में उन्होंने दिन बढ़ा दिए हैं। नेशनल जो कानून है उसमें 100 दिन का प्रावधान है, तो स्टेट ने अपनी तरफ से 150 या 125 दिन कर दिया है। तो इस तरह से काफी योजनाओं में स्टेट की तरफ से अलग अलग योगदान किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो 4 मुद्दे थे उसकी थोड़ी सी एक झलक मैंने कहा मैं दिखा दूं, और इसके साथ मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट तो हो गए हैं।
और फिर अगर समय होगा तो और भी इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। Thank you. Thank you, Ritika. So we will go on to the comments discussion. Maybe Sir Manika can start. You are on mute. Yes, Sam, thank you. Thank you for that presentation, Ritika, and thank you for writing the book. I cannot believe the number of times I had that, aha, okay, yeah, this is exactly what we do in our classrooms as well. Uh, in fact, Divya, who's also a colleague who teaches the economics course in law school, she would agree with me. A lot of these discussions around how GDP and well-being might be different, what the welfare state actually means, and uh, how it's seen increasingly in our societies as opposed to also some of the more advanced economies of the world. तो ये देख के ही मतलब हम लोगों को काफी, मुझे तो काफी खुशी हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा होगा, मैं ये क्लास में भी लेके जाऊंगी ये किताब, तो थैंक यू फॉर दैट। मैं जो मिड डे मील स्कीम है उससे संबंधित कुछ चीजें रखना चाहती हूँ जो मैंने आपके चैप्टर में पढ़ी, पर उसके अलावा खुद भी मेरा जो शोध रहा है, जो रिसर्च रहा है, वो बिहार में एजुकेशन के ऊपर था। तो काफी सॉरी, इट्स आस्किंग मी टू कंफर्म द स्पीकिंग लैंग्वेज, आई एम स्विचिंग। ओके, Maybe it's confused because I was speaking in Hindi and you're speaking in English. हाँ, हो सकता है, Not so हो clever सकता है। after all. Let's keep it bilingual only. हाँ, आई थिंक वो सबटाइटल्स के हिसाब से मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, आई डोंट नो। तो एक तो आपने जो मिड डे मील का पूरा हिस्ट्री दिया है इस चैप्टर में, और उसके बाद इसके अलग अलग किस्म के आंकड़े दिए हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में मिड डे मील स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। उससे एक चीज जो दो दो पॉइंट्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ, और इस पे आप और अगर बोलेंगी तो मेरे लिए समझने में और अच्छा होगा। लेकिन जो बात आपने यहाँ पे स्कूल्स का एक वो नोडल एक तरीका जिससे Oops. Am I the only one who's lost her? No, I have also lost her. Okay. Uh, think- yeah, I thought I was frozen, but Let's wait. yeah. Even Nayan is frozen. Maybe we are the ones who are out. No, I don't think so. I'll have to, I think, call her to inform her that she's frozen. Otherwise, I don't know if she's continuing to speak. Even Nayan is frozen. It's showing, no, it's showing red dots for all of us. Now they've been dropped, so they'll come back then. Meanwhile, can I ask Divya, am I like visible? I'm No, searching. you're not. I was about to tell you the first time you logged in, so we cannot see your video. Nayan is I back. don't know, I have switched it on, Manika but is still not. I'm not visible. Maybe if you leave and join again, it'll work. Often these things are. Sorry, I Aha. got also. Okay, Nan is back. Okay, sorry. Now we have to wait for Manika. I tried calling her, but she's back. She's back. There she is. so sorry, electricity was off, Oh, it sort of died. Yeah. हाँ, तो एक तो आप मिड डे मील के कॉन्टेक्स्ट में जो सोशल प्रोविजनिंग की बात है, इसमें डिफरेंशियल न्यूट्रिशन लेवल्स होंगे, ये बात बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आप बोल रही हैं कि कैसे उसका, जहाँ पे आप बेनिफिट्स की बात कर रही हैं कि स्कूल सिस्टम को कैसे मिड डे मील का होना जो है
वो एक जरिया बन जाता है अटेंडेंस का, एक एनरोलमेंट का, उन परिवारों के लिए जो शायद अगर ऐसी कोई स्कीम ना हो तो वो शायद उनके लिए प्रोवाइड करना शायद ज्यादा मुश्किल होगा। तो सरकार की भागीदारी इसमें जो है उसको बहुत मुख्य तरीके से आप लेके आती हैं चैप्टर में। इंटरेस्टिंगली इस पे मतलब देर इज दिस, एटलीस्ट जो फेमिनिस्ट थियोरीज हैं उसमें सोशल प्रोविजनिंग एज अपोज टू प्राइवेट प्रोविजनिंग पे काफी एम्फसाइज किया जाता है उसे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये दिख रहा था कि जहाँ खाने की जिम्मेदारी जो है आमतौरों पे परिवारों में भी वो महिलाओं पे ज्यादा पड़ती है, चाहे वो वर्किंग तबके की महिलाएं हों या अदरवाइज भी हों, वो ज्यादातर महिलाओं पे पहुंचती है ये जिम्मेदारी। तो इसमें सरकार की भागीदारी होने से वैसे भी there is something to say about gender therefore specifically and which you have in the chapter। जो दूसरी चीज मैं जो मीडिया में तमाम चीजों में रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ा था पर शायद आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से लिखा गया है और जिससे तान्या ली एक फ्रेज का यूज करती हैं अपने एंथ्रोपोलॉजी में, जिसका है रेंडरिंग टेक्निकल। जो आपने आधार पे सेक्शन लिखा है इस चैप्टर में, उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि सरकारी ढांचे में भी और इन सोशल पॉलिसीज में भी कई बार ये टेक्निकल उसको एक प्रोग्रामेटिक चीज बना के उस पे एम्फेसिस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप जो सोशल और पॉलिटिकल सवाल ऐसी किसी स्कीम से आप सोसाइटी के समक्ष रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है अपने आप में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप और कहें कि ये जो टेक्निकल सवाल बना दिया गया, जो ऑफ कोर्स करप्शन के प्रैक्टिसेस जो थे उनसे उभरा सवाल है एक तरीके से, पर इसका कहीं ना कहीं स्टेट के शिफ्टिंग रोल से भी लेना देना है। इंस्पेक्शन राज चाहे चला गया हो, लेकिन आ, आ, ये सोच कि कहीं ना कहीं जो स्कीम्स दी जा रही हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है बजाय ये देखने की कि किस तरीके के बेनिफिट हो रहा है। जो आपने चैप्टर में कई बार बोला है कि करप्शन की प्रैक्टिसेस का इतना विजिबिलिटी है मीडिया में, लेकिन जो लाखों करोड़ों बच्चों को इस स्कीम के थ्रू खाना खिलाया जा रहा है उस चीज पे जो आम बात है, जो कोई अलग से कोई एक दिन वाली बात नहीं है, उस चीज पे एम्फोसिस जो है वो कम दिया जाता है इन स्कीम्स में। जिस समय स्पेशली सरकारी ढांचे को कटघरे में रखा जाता है उसमें ये चीज और ज्यादा होती है। तो ये अगर आप इस पे कुछ ये टेक्निकल बनाने की जो प्रणाली है कई स्टेट प्रोग्राम्स में, उस पे अगर कुछ आप कहें तो अपने खुद के काम से और खुद के पढ़ाई से कई बार मेरे दिमाग में ये जो स्पेशली आपने आधार वाली बात जो लिखी है, जिसमें ये इंश्योर करना कि किसी की गैर हाजिरी में, किसी स्टूडेंट की गैर हाजिरी में उनका नाम कहीं चढ़ा ना दिया जाए। वैसे तो मेरे ख्याल से नैन भी इसके बारे में बात करेंगे, पर एनआरईजी में वो मास्टर रोल वाला चीज मेरे दिमाग में एक तो घूम रहा था। दूसरी चीज जो 16th-17th सेंचुरी में ब्रिटेन में पुअर लॉज थे, जिसमें कंटिन्यूअसली एक तरीके से आप स्ट्रिक्टर बनाते जा रहे थे क्योंकि ये शक था कि हमेशा इसका मिसयूज ही होगा। जरूर जो गरीब तबके से लोग आ रहे हैं जो इन पुअर लॉज के तहत जिनके लिए वर्क हाउसेज या पुअर हाउसेज रखे गए हैं, इस तरीके का एक सोच था जिसके बारे में कालपुलानी बात करते हैं और लोग भी बात करते हैं कि कैसे वो सोच था कि आप उनको शक के दायरे में ही रखते हैं कि ये जरूर कहीं ना कहीं एक तरीके से करप्शन से रिलेटेड है। जबकि आपका खुद का चैप्टर और इसको आपने बहुत स्ट्रांगली रखा है, अक्षय पात्रा जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन लोगों का इस प्रणाली का हिस्सा बनना और उन लोगों के करप्ट प्रैक्टिसेस पे इनफैक्ट उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना विजिबलाइज करा जाता है इस चीज को कि कुछ टीचर्स, कुछ अध्यापक, कुछ इसका हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें कोई इंडिविजुअल्स इसका हिस्सा हो सकते हैं। पूरे के पूरे ढांचे पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है कुछ इंडिविजुअल्स के करप्ट प्रैक्टिसेस पे, पर जहां पे आप होलसेल नॉन स्टेट एक्टर्स या प्राइवेट प्लेयर्स को ये उनके हाथ में एक तरीके से सौंप दे रहे हैं और अनऑडिटेड है वो बिना किसी ऑडिट के ऑलमोस्ट फंक्शन कर पाते हैं काफी सालों तक।
होते भी हैं अगर ऑडिट, तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई उसका कोई नतीजा निकल पाता है। तो ये जो एक तरीके से हिपोक्रेसी शब्द शायद कहना मुश्किल होगा, बट आप ये बात दिखा पा रही हैं उस चैप्टर में, और ये शायद इस पूरे ढांचे पे, वेलफेयर स्टेट के ढांचे पे सोचने पे अदरवाइज भी मदद करता है, क्योंकि ये बात आपने मिड डे मील के कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन ये सभी किस्म की सोशल जो पॉलिसीज हैं उसमें ये चीज देखने को मिलती है ऑफन। कास्ट और जेंडर पे आपने स्पेसिफिकली कुछ मौकों पे, स्पेशली जो रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उस पे कुछ रखा है, पर ये बहुत ही एक रिमार्केबल चीज है। मैं सोच रही थी कि और ये इसका जिक्र आप शुरू में जहां आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं मिड डे मील को, शायद आपने वहां पे किया है, जहां पे आप ये बात रखती हैं कि किस तरीके से कास्ट को आप वहां पे बहुत स्ट्रांगली नहीं रख रही हैं, लेकिन जो टेक्निकल इंटरवेंशन है एक तरीके से, या सोशल इंटरवेंशन हैं स्टेट के तरफ से, उसमें आप कहीं ना कहीं कास्ट के ढांचे को, जहाँ कोडाइनिंग की बात है, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि सभी वर्गों के बच्चे और सभी जाति समूह के बच्चे जो हैं वो साथ में बैठ के इस सरकारी प्रबंधन में साथ में बैठेंगे और साथ में खाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज तो मिलता है। और मैं ये चीज मेरा बिहार में खुद जो स्टडी था वो साइकिल प्रोग्राम पे था, जो लड़कियों के लिए साइकिल प्रोग्राम नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसे बाद में यूनिवर्सलाइज करके लड़कों के लिए भी कर दिया गया, लेकिन शुरू में वो केवल लड़कियों के लिए था। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रही थी कि एक तरीके से हमें पता है कि जो क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टडीज की स्कॉलरशिप है उसमें इस तरीके के टेक्निकल इंटरवेंशंस जो डीपोलिटिसाइज्ड होते हैं काफी तरीकों से, उसको काफी उस तरीके से देखा जाता है कि ये टेक्निकल इंटरवेंशन ही है। लेकिन चाहे ये इंटरवेंशन टेक्निकल ही हो, चाहे आप न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके एग्जीक्यूशन में सोसाइटी में जो है बाकी कोई सोशल नॉर्म्स जो है वो इधर उधर नहीं होते। इनफैक्ट वो काफी चैलेंज होता है, जो आपके चैप्टर में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए हैं, और जैसे मीडिया में आमतौर पे आता है कि कोई दलित महिला जो है वो अगर खाना पका रही है, या फिर दलित बच्चों को अलग से बैठा के खिलाया गया, इस तरीके की जो चीजें आती हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि ये सोशल पॉलिसीज जो है वो केवल एक वेलफेयर का ढांचा, जो आप टेक्निकल जिसके बारे में हो भी सकते हैं, उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ऑपरेट तो सोसाइटी में कर रहा है। तो वो जब सोसाइटी में ऑपरेट कर रही हैं सोशल पॉलिसीज, तो हमेशा उसमें उस टेक्निकलिटी के बियॉन्ड कुछ होता है, और वो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज है। मेरे ख्याल से मैं काफी बोल चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी, और रितिका आप इसमें से किसी भी चीज पे बोलना चाहती हैं तो आप वो हमारे लिए बोल सकते Thank you. Nan, do you want to go back and forth, or do you want to give the others, everyone, a chance to speak and then I respond? I think back and forth we can do Okay, for okay, yeah, okay, yeah. ठीक है। सो थैंक यू। इतने प्यार से और इतने ध्यान से कोई किताब पढ़े, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। सो मिड डे मील मेरी काफी फेवरेट योजना है। मतलब स्कूल में जब बच्चे मिलते हैं खाना खाते हुए, तो इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग टू सी। और अगर उनको अच्छा खाना मिल रहा हो तो फिर और भी अच्छा लगता है। एंड आई थिंक फॉर मी एक तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब शहरी लोगों से बात करो या ऐसे लोगों से बात करो जो जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है इन स्कीम्स के प्रति, तो मिड डे मील के लिए वो काफी कहेंगे कि स्कूल को दाल भात केंद्र बना दिया है, और मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे और उसकी क्या जरूरत है, एज इफ भूखे पेट पे कोई भी पढ़ाई कर सकता है। हाँ, और ये क्लासरूम हंगर काफी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, और इसके चले जाने मतलब अगर खाना मिल रहा है बच्चों को, इनफैक्ट तमिलनाडु में तो एक कदम अब आगे और चले गए हैं उन्होंने, कम से कम चेन्नई में शायद, पर शायद अभी पूरे राज्य में हो गया है, ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है स्टालिन ने।
तो अभी सुबह आते उनको ब्रेकफास्ट मिलता है और फिर बाद में लंच मिलता है, तो जो भूखे पेट पर पढ़ाई वाली प्रॉब्लम है वो काफी हद तक मिट जाती है। और अगर आप, मतलब हम सबका ये अनुभव है, अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बट इट्स सो ऑब्वियस, बट स्टिल पीपल डोंट सी इट। एंड आई थिंक बाय पीपल आई मीन वेल ऑफ पीपल, और क्योंकि कभी शायद उनके साथ ऐसे हुआ नहीं है, कभी गलती से भूखे रह गए तो अलग बात है, पर वो उनके लिए ये बात समझना काफी मुश्किल है। तो आई थिंक एक तो यही मकसद था एक तरह से कि लोग उसको दाल भात का ना मतलब सिर्फ खाने पीने की बात ना समझे, एक्चुअली वो शिक्षा के हक से बहुत जुड़ा हुआ है, क्लोजली जुड़ा हुआ है। दूसरा, एक चीज आपने कही, एंड इट वुड बी नाइस टू हियर योर थॉट, कि जो फेमिनिस्ट आपने कहा थॉट है इन मुद्दों पे, और सोशल प्रोविजनिंग वर्सेस प्राइवेट प्रोविजनिंग, एक्चुअली मिड डे मील योजना में 90% से के आसपास कुक और हेल्पर महिलाएं हैं। सो इट इज स्टिल, इवन दो इट इज पब्लिक प्रोविजनिंग, इट इज स्टिल, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि जो कुक और हेल्पर की अपॉइंटमेंट्स होगी उसमें विधवा महिलाओं को, दलित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इट वाज रियली सीन आल्सो एज एन एम्प्लॉय। अब मेरे हिसाब से वो अच्छी ही बात है, पर क्योंकि महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर पैसा कमाने के बहुत कम अवसर हैं, तो एक तरह से ये उनको नौकरी मिल जाती है, और खासकर जो बिल्कुल ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको और काम नहीं मिल पा रहा है। पर इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इट इज रीएनफोर्सिंग कि खाना पकाना महिलाओं का काम है। सो आई नेट नेट आई फील कि ये फिर भी अच्छी ही चीज है, but maybe there's some tension there. I don't know much about feminist thinking on these issues, so I thought maybe that's one thing you can say a bit more about. And then the other thing you talked about is this rendering technical, and it's true, okay, but I think it's also related to the fact that the people who are implementing these schemes are coming from privileged sections, right? And so either there is hostility towards these programs, or there is a lack of understanding. When there isn't hostility, there's not enough of an understanding. And both those things end up creating a bad public perception. या अगर हॉस्टिलिटी है तो आप हमेशा कचरा ही ढूंढते रहोगे इन स्कीम्स में, हाँ, कि कहाँ कमियां रह गई। और अगर आप एक्चुअली समझते हो कि इसकी क्या अहमियत है लोगों के लिए, या आप इसके खिलाफ नहीं हो, तो अच्छी तरह से उसको समझ पाना वो काफी मुश्किल है। मतलब हमारा क्लास जो इशू है, कास्ट इशू है, वो इस पे आने लगते हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये टेक्नोक्रेटिक अप्रोच जो है, जो चोरी पे फोकस है, चोरी बहुत सीरियस इशू है। पर ये चोरी भी क्यों हो रही है, कि उसका रास्ता किस तरह से खुला है। जैसे कि इन्फ्लेशन है अटेंडेंस का, हाँ, कि आपके बच्चे, एनरोलमेंट आपका 100 का है, आज 80 बच्चे आए हैं, पर फिर भी आप अटेंडेंस 100 की दिखा रहे हो। वो क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि या तो आपको ढंग से पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप ये रास्ता निकाल रहे हो अपनी, जैसे कुक और हेल्पर की सैलरीज बहुत कम है, तो उनको लगता है कि यही हमारा पेमेंट हो गया, जो हम 20 बच्चों का राशन बचा लें, दे कॉल इट बचत कि हम वो बचा लें। या कहीं पर जहाँ ईमानदार हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम अगर इन्फ्लेट करेंगे अटेंडेंस, तो जो अंडे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, वो 20 बच्चों के जो बजट है उसमें से हम सब बच्चों का अंडे का बजट निकाल लेंगे। तो चोरी भी है, और जो स्ट्रक्चरल बाधाएं आ रही हैं उसको मैनेज करने का तरीका भी है। दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों में से कौन सा बड़ा है वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर कम से कम मेरे ध्यान में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसने इसको समझने की कोशिश की हो। So maybe I'll stop there for now, and then maybe we can revisit some of these issues. I'm trying to keep it short because it's easy to get carried away.
I think Manika, you can maybe come in a bit later again. I mean, because she also asked for certain comments, and then we can move on to the next discussion. Tahiba, are you here? Yeah, sure. Yeah. But we still can't see you, I think. Wait, let me. No, I don't know what is the problem Acha, with the chalega, camera. doesn't matter. I'll see you another time. Yeah, sure. Hi, Ritika. Thank you so much for such a book, and also not just that, but you have been engaged in such kind of a work since many years, not just you and other as well. So I will tell you a little bit about myself as well. In 2012 I did some kind of a field work in Bihar with like kind of offshoot of other organization like JJSS, Kamaini and others. So where like I was doing work around the Anganwadi centers only in Purvi Champaran particularly. So there, what in a state like Bihar, what kind of thing I observed in terms of caste, gender, and dominant caste, in terms of like functioning, that how they impact the functioning of Anganwadi centers in multiple ways. Also, not just that, but also you mentioned about the conditional cash transfer scheme. So I was involved with COD, Collaborative Research and Dissemination, COD, which is an NGO. So for a year, like we were engaged in seeing the impact of one of the conditional cash transfer schemes called Apni Beti Apna Dhan, which was started in 1990s, kind of a first kind of a scheme which was started. तो उसमें भी जो ये ICDS जो है, जिसके थ्रू बहुत सारे स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, और ये सिर्फ एक वो कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से सोसाइटी का जो स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब बहुत सारी चीजों से उससे जुड़ता हुआ कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें एक साथ आती हैं और कोई स्कीम जो है उस पे कहीं ना कहीं तरीके से इम्पैक्ट डालती है. Are you able to like, am I audible? Okay. So this is like again I was reading the interview of the program officer of the ICDS, and I did this kind of interview with her in Haryana. And then I was like, in her conversation, I was remembering that what was her perspective on these kind of schemes, and like how in terms of administrative inefficiencies, कि बहुत सारी जगह जो है जो लेवल है, मतलब not just like किस जो okay. Now I think you will be able to see me maybe. So I got this notification about starting the video and all. तो ये जो स्कीम्स हैं उसमें जैसे ICDS में प्रोग्राम ऑफिसर, CDPO, सुपरवाइजर, देन आंगनवाड़ी वर्कर्स, कार्यकर्ता, सहायक, सो अलग अलग तरीके के नेचर है वर्क के. और उसके बाद जो है बहुत सारी जगह ये वर्कर्स जो है मतलब खाली है पोजीशंस बहुत सारी जगह. तो एक तो ये भी है कि बहुत सारी जगह आप देखोगे कि इतने लोग हैं ही नहीं. दूसरा, बहुत ज्यादा जो है उनके ऊपर तरीके का काम है जो उनको काम करने नहीं देता. तीसरा ये है कि उनको ऊपर से पॉलिसी आ जाती है और उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है. तो ऐसा कोई फीडबैक मैकेनिज्म या वो कैसे करना चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेके भी है मतलब कि कुछ प्रोविजन नहीं है. अब आपका जो चैप्टर है ये आंगनवाड़ी या बच्चों के भविष्य की नींव, जिसके अंदर आपने कुपोषण को लेके काफी चर्चा की है, और किस तरीके से जो है कुपोषण एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके ऊपर सरकारों ने जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया. जो आप बताती है कितनी बार ये शब्द जो है डिबेट के अंदर और स्पीचेस के अंदर आया है, बहुत ही कम बार आया है ये मुद्दा. दूसरा जो है कुपोषण, आप जिस एक सक्षम वर्ग के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करती है कि कुपोषण उसमें भी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लोअर क्लास और लोअर कास्ट के अंदर है. So and also like that how the schemes is really ICDS is very interesting and initiative which can do a substantial change in the society itself.
बट हाउ लाइक इफ यू थिंक अबाउट दैट कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एक तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके अंदर, जैसे बिहार के अंदर जो है मुसहर टोला जो है, वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया कि दलित महादलित, मुसहर को महादलित कहा जाता है, तो वहां पर जो है उनको सुविधाएं मिले, लेकिन उसके अंदर जो कार्यकर्ता है वो ओबीसी कास्ट से है, और वो भी उस तरीके का, या राजपूत कास्ट से है, तो वो वहां पे जाती नहीं है मतलब कि सेंटर्स के अंदर, तो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हो रहा है। फिर ये है कि खाना डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर जो दलित बच्चे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रही है, ना कुछ इस तरीके का मिल रहा है, जिसकी वजह से कास्ट कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, जो मे बी इट इज नॉट देयर इन सिटीज लाइक दिल्ली और लाइक मे बी अदर प्लेसेस एज वेल, जो कि बिहार जैसे जो आपने बताया भी कि काफी सारे स्टेट के अंदर काफी अंतर है इन सब चीजों को देखने में। तो लेकिन इसको लेके क्या कितना चेंज आया है, वो इट वाज लाइक लॉन्ग बैक लाइक 2012 और समथिंग, बट हाउ लाइक थिंग्स हैव चेंज बिकॉज जो मतलब जमीन स्तर से जो संगठन है उन्होंने काफी काम किया था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है उनके लिए काम करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फंडिंग नहीं है एनजीओ की, जैसे अभी दिल्ली के अंदर ही ये क्रैश को और आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है जोड़ के की इनिशिएटिव की बात थी, लेकिन अब बहुत सारे जो है ऐसे सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। यही पूरा का पूरा जो कंसेप्शन एक तो हो रहा है, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अंदर की फ्री के लिए दे रहे हैं वो आप, फिर फंडिंग कट भी है, एंड दिस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो एंड ऑल्सो लाइक, ये तो मुझे लगता है कि ये अक्रॉस द क्लास वाली बात है कि औरतों को जो है इस तरीके के काम देना, वो अच्छी बात है कि औरतों को काम गांव के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये लो लाइक वेजेस आर वेरी लो इन दिस काइंड ऑफ वर्क। लाइक आंगनवाड़ी वर्कर्स को 6,000 रुपए बहुत सारे स्टेट के अंदर, उससे कम उसके बाद दिया भी नहीं जाता, काफी काफी महीनों तक पैसा उनका आता भी नहीं है, और वो वॉलंटियर भी कंसिडर किए जाते हैं सच। तो ये क्या आपको क्या लगता है कि आपने जितना इतना सारा ऑब्जर्व किया, इतना सारा फील्ड वर्क किया है, कि बिकॉज लाइक दीज काइंड ऑफ स्कीम्स आर for the like related to the poor, दलित एक्सेट्रा, इसलिए जो है इनके अंदर मतलब वेजेस को लेके, इन सब चीजों को लेके ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि टीचर्स अगर देखेंगे तो टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये गांव के अंदर इससे की काम, इसमें एजुकेशन भी है, फूड भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर बजटिंग कम है। दूसरा, जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनकी सैलरी नहीं आ रही है। तो ये कैसे, लाइक हाउ डू यू सी द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ making sense of these schemes, or like the kind of like wages which are involved, or the kind of reputation or recognition being given to these workers? I'm not sure I fully understand the question. I think let me start with some clarifications. पहला तो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है कम से कम वो वॉलंटियर नहीं है, आशा वर्कर है, वो वॉलंटियर के रूप में देखी जाती है। और जो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एक्चुअली उस पे अलग से भी चर्चा है सेकेंड लास्ट चैप्टर में, वेजेस पे, उनकी वेजेस पे। इनफैक्ट देयर इज अ डेडिकेटेड चार्ट, आई कैन शो इट टू यू इफ यू आर इन। एक सेकेंड मुझे देखने दो, शायद वो मेरी प्रेजेंटेशन में भी है, अगर है तो। हाँ, करेक्ट है, एक सेकेंड, हाँ मैं दिखा रही हूँ। sorry, share stock. Okay, now you can see the chart. Yes, Yes, yes. yes. ओके, सो ये 10वें वाले चैप्टर में है, और शायद शुरुआत में देख के थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें कुक, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की स्टेट वाइज सैलरीज प्लॉट की हैं।
तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी सैलरीज ट्रायंगल्स हैं, कुक की सैलरीज डैशेस हैं, और हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर की सैलरीज डॉट्स हैं। और जो वाई एक्सिस है उसमें महिलाओं की बुआई में मजदूरी की दर है। सो दैट्स द रिजर्वेशन वेज। हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम इतनी उनको मजदूरी मिल जाती है। अब अगर इस चार्ट में ये लेबल्स की तरह वो एक्सैक्ट एक ना 45 डिग्री लाइन है, तो अगर आप 45 डिग्री लाइन के दाएं हाथ में है, जैसे सारे ट्रायंगल्स, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर ट्रायंगल्स दाएं हाथ में है, तो मतलब सैलरीज, जो आंगनवाड़ी वर्कर की सैलरी है वो कम से कम महिलाओं की बुआई में जो मजदूरी है उससे ज्यादा है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, मिड डे मील कुक और हेल्पर, उन सब की सैलरीज रिजर्वेशन वेज से भी कम है। हाँ, पर सिंस आपने आंगनवाड़ी वर्कर की बात की है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 15-16 हजार प्रति माह है, और कम से कम जो है वो 5,500 है किसी स्टेट में, और उससे ज्यादा, हाँ, 6,000। तो 2-3 ही स्टेट्स अब ऐसे रह गए हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर को भी ढंग की सैलरी ना मिल रही हो। अभी धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। बट एनीवे, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज नॉट सो मच रिलेटेड सो मच टू ICDS, पर द फैक्ट कि जो महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पर्याप्त सैलरी नहीं दी जा रही। और ये मैंने पहले भी बात की थी कि जब उनको ढंग से आप पैसे नहीं दोगे, उनसे इतनी अपेक्षा करोगे कि 1000 काम वो करें, अपना काम तो करें ही, साथ में और भी उनको ड्यूटी लगा दी जाती है, तो ऑब्वियसली फिर या तो वो कुछ भी नहीं करेंगे या चोरी करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी सैलरी अपने उनके अनुसार थोड़ी ठीक हो जाए। एंड अगेन, अभी तो मैंने सबसे कम रिजर्वेशन रेट से कंपेयर किया है, लेकिन अगर आप स्कूल टीचर से कंपेयर करेंगे तो वो तो बहुत ही फिर फर्क आ जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी सैलरीज हैं सरकारी क्षेत्र में ही, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही मतलब रिजर्वेशन वेज के आसपास है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन में भी फर्क आ रहा है। अगर लोगों को अच्छे से रिकग्निशन ना मिले, पैसे ना मिले, तो वो अपना काम दिल लगा के, मन लगा के नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से एक्चुअली बिहार और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की जो योजना है ICDS, वो सबसे कमजोर है। तो आपने जो देखा है वो भी पुराना, आपने कहा 2012 की शायद बात है, पर आई थिंक इन राज्यों में बहुत कम सुधार आया है। तो यू हैव सीन द वर्स्ट, आई वुड इमेजिन। अगर आप दूसरे राज्यों में जाएं, खासकर जो दक्षिण के हैं, या इवन उड़ीसा, उड़ीसा में मैंने बहुत सारे वीडियोस उड़ीसा की आंगनवाड़ी के अपलोड करके रखे हुए हैं यूट्यूब में, क्योंकि मेरे लिए भी एक खुशी की बात है। और यही कि लोगों के मन में ये जो बात बैठी हुई है कि ये ऐसे ही चलेंगी या ऐसे ही चल सकती हैं, मतलब बहुत ही खराब तरीके से, वो अवधारणा बदलना जरूरी है, एंड टू शो व्हाट इज पॉसिबल। बहुत कम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड है, अगर उनको सम्मान से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक्सेट्रा। सो मे बी आई स्टॉप विद दैट। Thank you, Ritika. Thank you so much. I had a small question on the NREGA chapter, and then we can move on to Divya. Also, we have, I think, roughly around 30 minutes. So my question was rather simple only, which is to do with, I mean, one of the effects of this NREGA in its conceptualization, जो आपने पहले परिकल्पना का वाला सेक्शन में, and then implementation में क्या क्या problems है उसमें आया है, तो connect the first and the last kind of parts.
So one of the in its conceptualization, the NREGA was also supposed to basically link with the Panchayati Raj system and make democracy work in the rurals in one way. I mean, it also kind of, I mean, before NREGA, I mean, in the left debates, there was all about matlab, peasant, worker, ye jo debates hota tha. Suddenly, NREGA also made visible a large section of rural labor, which was matlab, labor question in the rural suddenly came out, and it affected the left debates also. So I'm asking from that angle as well, because, and one of the compared to the other what do you call the social policies also, NREGA has also lent itself to unionization. So a lot of like unions of NREGA unions have been formed, and I think yes, I mean, on one level, this basically democracy the rurals through the existing Panchayati Raj system, but also like in terms of unionization and so on. And then later on, you go on to केंद्रीयकरण का समस्या क्या है, centralization का issues, problems क्या है. तो उसमें तो I mean, obviously with I mean, how do you see basically this kind of contradiction is what I wanted to ask, which means on one level the centralization problems and so on can be argued on the level of on the level of the government and policy and so on, but from the अगर एक round demand create हो गया है and जनता active हो गया है, democracy activation hai, so then that also creates that pressure, no, from downward up. Matlab, on one level there's a debate on the top, but also on the so has it created that kind of a sense, you think, where कि कल को NREGA पूरा हटा ही दे तो मतलब actually issue होगा. So so this was my question. Okay, that's not such an easy question for me to answer, but it's worth thinking about a little bit. So let me say that here and there, perhaps there is some level of decentralization and grassroots democracy at because of the involvement of Panchayati Raj institutions. But it's nothing like what one would want it to be. कि ऐसे नहीं है कि आप ग्राम सभा हो रही है, उसमें बात होती है कि भाई इस टोले में, मूसाहर टोले में सड़क बनाने की जरूरत है या पगडंडी बनाने की जरूरत है, फिर उसका प्रस्ताव जाता है और वो सैंक्शन होती है. उस तरह से तो बहुत कम आई वुड इमेजिन है. हालांकि हमने इसको बहुत स्टडी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि पैसा खर्च पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा कम से कम 50% इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो उनके हाथ में पैसा जरूर आया है. अब ये जो शुरुआती साल थे, एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ देयर कि शुरुआती साल में ऐसे लगा कि आप नट्स एंड बोल्ट्स जगह पे डाल दो, और ये जो एसेट्स वाले सवाल हैं कि अच्छे एसेट्स बन रहे हैं कि नहीं, पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, वो एक सेकेंड जनरेशन इशू है, उसको बाद में देखेंगे. पर लेकिन जब वो सेकेंड जनरेशन इशू देखने का मौका आया या समय आया, तो तब तक UPA 2 आ चुकी थी, उसमें टेक्नोक्रेट्स का बहुत पकड़ बन गई. एंड आई, इन माय व्यू एटलीस्ट, मे बी आई एम over obsessed perhaps, but this Aadhaar problem is very closely linked to the centralization as well as technocratization. कि उस समय ऐसे एक माहौल बन गया कि करप्शन है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस करप्शन को हटाने का एक ही हथियार है और वो है टेक्नोलॉजी. तो पहले वो शुरू हुआ आधार से, पर अब वो उसके और 1000 हाथ पैर निकल आए हैं. कोई कहता है ड्रोन इस्तेमाल करो, कोई कहता है फेशियल रिकग्निशन करो, कोई कहता है आइरिस स्कैन करो, कोई कहता है वर्क साइट पे फोटो खींचो. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट ऑलरेडी इवन इन UPA 2
जैसे एसेट की बात है कि दिस इज अ डिसीजन जो ग्राम पंचायत पे लिया जा सकता है कि क्या आपको पंचायत के पास पैसा है, आप डिसाइड करो। और ये एक शेल्फ ऑफ वर्क्स ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया हुआ था कि दीज आर द परमिसिबल वर्क्स। हाँ, कि क्योंकि इसमें वो 60-40 मटेरियल और वेज का रेशियो मेंटेन हो सकता है। पर बाद में ये भी सुना कि जैसे झारखंड में जब प्रेसिडेंट्स रूल था, तो तब गवर्नर के ऑफिस से आदेश आया कि 1 लाख कुएं बनेंगे। हाँ, तो वो पंचायती तब वहां पे इलेक्शन नहीं हुए थे शायद पंचायती राज, क्योंकि झारखंड में बहुत लेट हुआ सबसे पहली बार पंचायती राज का अपना ग्राम पंचायत के इलेक्शन। तो वहाँ सेंट्रलाइज हुआ स्टेट लेवल पे। बाद में एक झगड़ा ये भी था भारत निर्माण राजीव वो भवन बनाने की। हाँ, वो भी केंद्र सरकार ने बोला। फिर जब तालाब बनने की बात हुई तो एक किसी ने हमें बताया कि तालाब का स्पेसिफिकेशन, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ, वो भी केंद्र सरकार तय कर रही थी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आप जगह नहीं देख रहे कि कहाँ बन रहा है तालाब, इतनी इस हद तक शायद सेंट्रलाइज हो रहा था, जो चीज वहाँ एक्चुअली इज वेरी वेल सूटेड। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई वुड से कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है, क्योंकि पहली बार पंचायतों में इतना पैसा मिलने लगा था पहले 10 सालों में खासकर। अभी भी वो प्रावधान तो है ही कि 50% खर्च कम से कम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होगा। तो अब उसका अब्यूज भी हो रहा है और यूज भी हो रहा है। दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिसपे इकोनॉमिस्ट ने शायद इतना गहराई से काम पता नहीं किया है कि नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा, और इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। दूसरा था ये नरेगा यूनियन और यूनियनाइजेशन की पॉसिबिलिटीज। और वो भी, पर मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स में यूनियनाइजेशन हो रहा है। उसमें पहले ही जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत मजबूत नहीं थी, और अभी तो और मतलब उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी हैं इधर उधर यूनियंस, और जहाँ यूनियंस है वहां पे नरेगा का क्रियान्वयन अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जैसे वहां पे शायद मजदूरी की दर ठीक आती है, चोरी कम है, भ्रष्टाचार कम है, काम ज्यादा मिल रहा है लोगों को। पर अगर एकदम से ऊपर से डंडा पड़ेगा और नरेगा हट जाएगा, तो ये बहुत हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि नरेगा बचा रहेगा, क्योंकि नीचे से डिमांड और ऑपोजिशन होगा इस तरह के डिसकंटिन्यूएशन का। क्योंकि अभी भी लोगों को ये नहीं बहुत अच्छे से इतना पता चल गया कि 100 दिन का काम, बट काम की आप मांग कर सकते हो, और मांग करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसके में उसमें आपको रसीद मिलनी चाहिए, उस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसके बारे में अभी भी जानकारी का बहुत अभाव है। और वो ही सबसे बड़ा नरेगा की सबसे बड़ी ताकत है। अगर मजदूरों को अपने हकों के बारे में पता हो तो फिर वो लड़ सकते हैं और ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। पर वो एक तो वो पूरी प्रक्रिया और पेचीदा कर गई है, हो गई है, कर दी गई है, और दूसरी तरफ उसका अ, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। तो दोनों के बीच में वो वाली कड़ी अभी भी कमजोर है मेरे हिसाब से। Thank you. Divya, you can go ahead. Yes, thank you. I know that we are nearing the end of this talk, so I'll keep my comments short, even though I have many questions and thoughts, questions and thoughts actually. तो मैं चाह रही थी कि मैं कोविड वाले चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा मैं आपके रिफ्लेक्शंस लेना चाहूंगी। आई नो आपने एकदम स्टार्टिंग में लिखा भी है कि आपका काम हेल्थ पे इतना ज्यादा नहीं है, बट मेरा भी नहीं है इनफैक्ट। तो वो हेल्थ वाला जो स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन है वो पढ़ के मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और बहुत कुछ जानने को मिला, और उसके अलावा उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे सवाल भी आए। तो अगर मैं तो 2 एस्पेक्ट्स है इस चैप्टर में जो आप आमतौर पर देख रहे हैं, एक तो हेल्थ के ऊपर, एक एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर जब मैं आऊंगी तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी आपके चैप्टर में से, क्योंकि वो पढ़ के मैंने अपने लिटरली मैंने लिखा हा हा हा, बिकॉज क्योंकि वो हम सब ने एज टीचर्स एज फैकल्टी हम सब ने फेस किया है अपने कोविड के दौरान। तो वो मैं
चाहूंगी कि मतलब हम दोबारा से उसको सोच के हेल्थ के ऊपर जो मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग जो बात दिखी कि इंश्योरेंस के ऊपर काफी बीमा के ऊपर बहुत चर्चा हुई है आपके चैप्टर के अंदर। तो उसमें ये है कि जो डिपेंडेंस है बीमा पे, द गुड थिंग और बैड थिंग आई डोंट नो, बट बढ़ गया है। मतलब गवर्नमेंट सरकारी बीमा का जो प्रोपोर्शन है अक्रॉस द 3 राउंड्स ऑफ एनएफएचएस वो काफी बढ़त हुई है। और उसपे आपने एक स्पेसिफिक आपने कमेंट डाला है कि प्रिवेंटिव केयर की जगह क्योरिंग वाला मॉडल है, एक बेसिकली आपका हीलिंग वाला मॉडल है, हीलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है रादर देन ऑन प्रिवेंटिव केयर। बट वो आपने जैसे एक सरकारी बीमा के तौर पे दिखा है। बट मेरा जो सवाल है वो ये है कि इजंट इट की तो पूरा जो मॉडल है इंश्योरेंस का, जो मॉडल पर से इज नॉट ऑन प्रिवेंटिव केयर, मतलब चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो। और एक बहुत आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन, जो बिगर हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए निजी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैटर करेगी। लेकिन जो बेसिक अदरवाइज जो आपके वो है आमतौर पे आपके जो विजिट्स हैं उसके लिए सरकारी सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वो सस्ती हैं। इस तरीके से एक पैटर्न आपने इसमें लिखा है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बट मेरा जो बेसिक सवाल था वो ये था कि जो इंश्योरेंस का और बीमा का जो मॉडल पर से इन इटसेल्फ, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, कहीं ना कहीं वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल, कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर दैट मैटर, कि प्रिवेंटिव केयर को इन एनी केस, चाहे इंश्योरेंस स्कीम्स की बात की जाए चाहे अदरवाइज हेल्थ कैंपेन्स की बात की जाए, इन जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कैंपेन्स एक्सेट्रा अदरवाइज ऑल्सो, उसमें प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस है ही नहीं। मतलब हेल्थ रिलेटेड ओवरऑल पॉलिसीज का, नॉट जस्ट इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका कहीं ना कहीं छाप हमें हमारी बीमा योजनाओं में भी देखने को मिल रहा है। फिर उसके साथ एक और क्वेश्चन जो हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ पॉलिसीज रिलेटेड मैंने मेरे दिमाग में है कि हम लोगों ने, आपने जैसे कंपैरिजन किया हुआ है जर्मनी का जो प्रोपोर्शन परसेंटेज शेयर ऑन हेल्थ एज पार्ट ऑफ जीडीपी 8%, 10% एक्सेट्रा, और इंडिया का 1% या 1 से भी कम। और इवन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, उनका 1 से हमसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम उनसे भी पीछे हैं बेसिकली। तो आपने अभी अभी इस टॉक में भी आपने बोला कि कई बार लोग बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी इज एन इशू, मतलब वी कैन नॉट रियली कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर कंट्रीज, क्योंकि चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा। एक इंडिया के अंदर 100, एक भारत के अंदर 100 भारत हैं। तो वो यूनिवर्सल सेंट्रल लेवल स्कीम की अगर हम स्पेशली केंद्रीय सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से हम, मतलब वो हम कैसे कर सकते हैं? इज देयर एनी मॉडल जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं? और इज देयर, आई नो देयर इज नो राइट आंसर टू दिस, आई नो दैट, बट मतलब क्या दिशा क्या है हमारे लिए कि अगर इतना प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली हेल्थ बिल्कुल ब्रोकन है कोविड के दौरान, तो ऑब्वियसली अक्सर ये चर्चा होती है कि हम लोगों को ये उम्मीद थी, आपने भी लिखा अपने उसके अंदर कि कोविड के बाद उम्मीद थी कि सब सीखेंगे, और हमारी उम्मीद थी कि लोग भूलेंगे नहीं जो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भूल गए। हाँ, और ये चैप्टर पढ़ते हुए हमको मुझे खुद को बड़े हॉरिड मेमोरीज होता है ना, जैसे वो आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग दोज पिक्चर्स ऑफ कैंप्स एज बीइंग आइसोलेशन सेंटर्स, और लिटरली एक तंबू है और वहीं पे आपका इलाज चल रहा है। तो वो हॉरिड मेमोरीज भी सामने है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट कि we have to keep reminding ourselves of what COVID exposed us to, because unfortunately people have forgotten about it, and hence there is no discussion on strengthening the weaknesses that were exposed at that point of time, which are still there. तो मेरा ये सवाल है कहीं ना कहीं कि क्या कोई एक ऐसा मॉडल है जिसकी दिशा में हम जा सकते हैं? आई नो कि परफेक्ट मॉडल अडॉप्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक अलग चैलेंज है। तो ये 2 सवाल है कि अडेप्टेबिलिटी वाला जो इशू है, एक वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के ऊपर मैं चाहती थी कि थोड़ा अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो, बट बिकॉज वी वांट टू कीप इट शॉर्ट। तो हेल्थ के ऊपर मेरा यही एक था कि आई सोच रही थी कि अगर आप रिफ्लेक्ट करें थोड़ा सा। एजुकेशन में जो मैं लाइन है वो मैं पहले पढ़ना चाहूंगी, कैमरा just ऑफ one second. करके। नहीं नहीं नहीं, इट्स फनी, सब हंसेंगे मुझे लगता है। तो उसमें ये था कि खुद को म्यूट करके और कैमरा ऑफ रखकर बिस्तर में लेटकर क्लास का मजा ही कुछ और था। मतलब सो ये प्रॉब्लम हम सब ने फेस किया एज टीचर्स, क्योंकि हम तो उस समय एज टीचर्स हम लोग स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम किसको पढ़ा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल तक भी हुआ। तो एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ी गुत्थी है।
और एजुकेशन पे कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ, मेरे मायने से मेरी समझ ये है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। हालांकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्यों? क्योंकि असर का जो अभी लेटेस्ट सर्वे का जो फाइंडिंग्स आया है 2024 का, उसमें ऑफकोर्स 2018, 22 और 24 को अगर हम कंपेयर करें तो ऑफकोर्स 18 और 22 के बीच में ड्रॉप इन द लर्निंग आउटकम्स। असर का नोबल फैक्टर ये है कि वो आपके क्वालिटी को कहीं ना कहीं मेजर कर पा रहे हैं थ्रू लर्निंग आउटकम्स, तो वो क्लियर ड्रॉप है, वो दिख रहा है, कोविड का इम्पैक्ट है। लेकिन विद इन 2 years 2024 में देर इज अ गुड रिकवरी, नॉट ओनली रिकवरी बट इंक्रीज इन द लर्निंग आउटकम्स इवन कंपेयर टू 2018। तो वो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या इतना, क्योंकि इट्स नॉट लॉन्ग टर्म एट ऑल, अभी 2 ही साल हुए हैं, 2022 और 24 में 2 ही साल है। तो ये I don't know, matlab, if you have some thoughts to share on this, because all of that happened during COVID to education system, the digital divide, the class divide, इंटरनेट पे इंटरनेट का एक्सेस अज्यूम कर लिया गया, इंटरनेट एक्सेस सबके पास होगा, स्मार्टफोन सबके पास होगा, बिजली का साधन सबके पास होगा, तो इसलिए जो भी हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाएंगे, पिक्चर्स के थ्रू वगैरह वगैरह, वो सब कर लेंगे। एक घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को एक साथ उस समय क्लास अटेंड करनी है, तो एक फोन से एक ही बच्चा उस समय क्लास अटेंड कर सकता है। तो क्लियरली जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन मोड में चल रही है उस समय, बट इवन उसका भी एक्सेस सबके पास है, वो जरूरी नहीं है। तो इस तरीके का मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए, गिवन दैट दिस इज हैपनिंग एट अ मैसिव स्केल, बिकॉज ये ज्यादातर लोगों की सच्चाई है, ज्यादातर परिवारों की यही सच्चाई है, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके शायद असाइनमेंट पूरे कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, और शायद वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक आई वाज थिंकिंग कि अगर आप इफ यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कि ये आई एम वेरी कंफ्यूज कि हाउ टू connect the dots here. The second thing on education that I wanted your reflections on would be कि आरटी जब आया था ना, राइट टू एजुकेशन, तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि थोड़ा सा सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, और एक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, हल्का सा मेंशन था उस कॉन्सेप्ट का, ब्रिज क्लासेस का, कि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं या जिनको थोड़ा सा कैचअप करने की जरूरत है, उनके लिए ब्रिज क्लासेस भी रखे जाएंगे स्कूलों द्वारा, स्कूल आफ्टर स्कूल आवर्स या ड्यूरिंग समर वेकेशंस और व्हाटएवर। तो कोविड के दौरान एक रेगुलर शिक्षा या रेगुलर क्लासेस या रेगुलर स्कूल तो जो बंद हुए वो हुए, ब्रिज क्लासेस का भी मतलब ये जो था, मतलब द पॉइंट इज कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया वो आया, लेकिन जो बच्चे आमतौर पे वैसे ही वीक है स्टडीज में, या जिनके घर की या पारिवारिक स्थिति इस तरीके से है, माँ बाप ध्यान नहीं देख सकते उनकी पढ़ाई पे, उनके ऊपर अलग एक एडिशनल इम्पैक्ट आया, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो यू मेंशन कि कुछ स्टेट्स ने नो ब्रिज ब्रिज क्लासेस और हैप्पी करिकुलम इस तरीके की स्कीम्स लगा के थोड़ा सा ट्राइड टू कैच अप, कि अच्छा कोविड का जो वो डर है या जो भी है, मतलब स्कूल से जो डिसइंटरेस्ट है, जो 2 साल से बंद था, ऐश हो रही थी, मौज हो रही थी घर पे, वो जो अब बंद हुई है, उससे हम थोड़ा सा उनको ला पाए, घर स्कूल ला पाए बच्चों को। तो आई डोंट नो वो कितना हेल्प हुआ कितना नहीं, बट द पॉइंट इज कि वो उस समय जो भी पॉलिसीज आए, बट अभी द इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज एजुकेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, स्पेशली अर्ली ईयर्स में जो लॉस ऑफ एजुकेशन हुआ है, उसका इम्पैक्ट 2 साल 3 साल नहीं, उसका और आगे आने वाले समय तक दिखेगा। तो इस हिसाब से continuation of those bridge classes is also very, very important from that perspective. And the last point, and that's where I'll sign off, and over to you then. Last point is the privatization part, जो I think प्रीति ने भी अपने comments में लिखा है, in case of ICTS, do you see privatization in education affecting how people use the आंगनवाड़ीज? हालांकि मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। कोविड के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न जो देखने को मिला कि ज्यादातर लोग अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे। आई रिमेम्बर उस समय न्यूज में मतलब भी आता था कि क्योंकि लॉस ऑफ इनकम्स हुआ है ऑफ कोर्स, तो क्लियरली जो परिवार अफोर्ड कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे, सो नाउ दे आर गोइंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो दिस इंटरट्वाइंड विद द परसीव्ड नोशन दैट गवर्नमेंट स्कूल्स का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिलेटिवली पुअरर कंपेयर टू हायर क्वालिटी प्राइवेट एजुकेशन, उसके ऊपर भी एक कॉन्ट्ररी लिटरेचर है। इंटरट्वाइंड विद दैट, again, I'm coming back to the same question, which is the ASER 2024 findings of increased in the learning outcomes. So that's it. I think many questions, as you can see. I'm not sure if all questions made sense, but would like to hear from you. Thank you so much. Yeah, since we have a short on time, so I just because Divya has already mentioned one of Preeti's question, the other was in terms of differences of these schemes in different states. So if you can take that along as well. Yeah. Okay, so I'll try to be quick.
One, you said this health insurance model, by design, it is focused on curative rather than preventive. That's true for private health insurance, which is what we know in India. But there is another form of health insurance, which is social insurance, which is the kind of model that France has and kind of the single payer system which Canada has. तो वो जो सोशल इंश्योरेंस टाइप के मॉडल हैं उसमें आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सरकार तीनों मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं. लाइक आई सेड, मुझे बहुत अच्छे से नहीं हाँ पता जी, उन देशों के बारे yeah. में, पर एक वो जो सोशल इंश्योरेंस मॉडल है उसको हमें समझना चाहिए. और कुछ हद तक मेरे ख्याल से कुछ राज्यों ने, जब उनको आयुष्मान भारत का ऑप्शन आया, PMAY जो है उसमें इंश्योरेंस का जो हिस्सा है, उसमें उनको 2 ऑप्शंस दिए गए एंड आई थिंक मेनी ऑफ देम हैव ऑप्टेड फॉर समथिंग दैट रिजेंबल्स सोशल इंश्योरेंस मोर देन प्राइवेट इंश्योरेंस. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का बराबरी है. हाँ, तो जॉ का एक आर्टिकल है इंडिया फोरम पे अभी थोड़े ही दिन पहले का, थोड़े ही हफ्ते पहले का, जो इन सारे राज्यों में, इट्स कॉल्ड शिप, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, में भी शिप इज द एक्रोनिम. तो उन्होंने उसकी एक समीक्षा की है. उनके को-ऑथर का भी नाम मुझे भूल गया है. 2 लोगों ने मिलके ये आर्टिकल इंडिया फोरम में लिखा है, तो उससे थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा. और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि एक मॉडल है कि नहीं है. मेरे ख्याल से एक तो हमें याद रखना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है वो कंकरेंट लिस्ट पे है कि स्टेट लिस्ट पे है. स्टेट लिस्ट पे है ना, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. तो वैसे भी वेरिएशन रहेगा देश में. हाँ, मतलब करेक्ट. क्वाइट लाइकली, या Yeah. भी चाहिए शायद. हाँ. किस तरह का मॉडल है? एक मॉडल है यूके स्टाइल के, आप नेशनल हेल्थ सर्विस होगी, जो कुछ हद तक भारत में है, जैसे एम्स है, सफदरजंग है. मैं खुद जब हम लोग फील्ड वर्क करने जाते हैं तो मैं हमेशा अपना एक चक्कर तो लगा ही लेती हूँ. अगर सब सेंटर या PHC खुला मिलेगा तो जाके देख लिया कि कौन है कि नहीं. कभी जरूरत पड़ जाती है, एलर्जी हो रही है या सिर दर्द हो रहा है, तो उन छोटी मोटी चीजों के लिए. और जब आप वहां जाओगे तो आपको काफी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आते रहते हैं एक 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 करके. किसी के खेत में काम करते हुए चोट लग गई तो वो उसके उपचार के लिए आ गया. किसी की कोई दवाई है, और अभी तो ये NCDs की मॉनिटरिंग भी करने लगे हैं. तो वो एक मॉडल है कि आपका सरकारी सरकारी सुविधा है जो फ्री है, आप जस्ट अंदर चल के जाएं, जो NHS की तरह है. वो उसके लिए ऑब्वियसली खर्च बहुत होगा. आप यूके का खर्चा देख लीजिए. और भी राज्यों में, और भी देशों में है, सिर्फ यूके नहीं है. यूके के बारे में थोड़ा मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं कह सकती हूँ. अच्छा. दूसरा मॉडल है ये कनाडा या जापान या फ्रांस. फ्रांस का हेल्थ सिस्टम इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑफन रैंक नंबर 1. वो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस टाइप मॉडल है. लेकिन आप इंडिया में भी देखो तो, जैसे तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश में जो NHS वाला हिस्सा है वो काफी कारगर है और उसका लोग काफी हद तक उपयोग भी करते हैं. NHS का, NFHS का डेटा भी मैंने शायद दिखाया है उस चैप्टर में. और तो आई थिंक वो तो है ही. लेकिन और इनफैक्ट वो जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे यहाँ पे बातें भी हुई हेल्थ पॉलिसी के बारे में, भोरे कमेटी रिपोर्ट में भी उस तरह की कंसेप्शन विजन था कि उस तरह का हम कर पाएंगे. लेकिन हमने कभी 1-2% से ज्यादा खर्च नहीं किया. तो ऑब्वियसली वो उसमें बोझ बहुत पड़ता है. आप अगर एम्स या सफदरजंग चले जाएं तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है. तो ऐसा नहीं है कि सरकारी सुविधा अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है, लोगों की पहुंच से बाहर है. जिसकी कनेक्शन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. और इनफैक्ट वो चूज भी करेंगे, इवन दो दे मे हैव एक्सेस टू द प्राइवेट सिस्टम, दे मे स्टिल चूज बिकॉज देयर इज अ बिट मोर. वहां पे मतलब वो ऐंठने का डर कम रहता है लोगों को. दूसरा आपने पूछा कि लर्निंग आउटकम्स के बारे में. तो मुझे ये लर्निंग आउटकम वाला
सिस्टम ही थोड़ा सा क्या कहूँ, पर अगर आप एक पुराने एनएफएचएस में भी उन्होंने लर्न रीडिंग राइटिंग स्किल्स की टेस्टिंग की थी, जैसे असर हर साल करता है, और जी उसमें जो रैंकिंग आई थी और जो स्कोर्स आए थे वो असर से काफी अलग हैं। हाँ, सो आई this is थिंक, very interesting. हाँ, This so is very interesting. you Yeah. I can send it to you. If you just send me a line, I can send you that Yeah, table. I will do that actually. Huh? Yeah. I would want to do that. Yeah. So I think maybe I'll just say that much No, on that's this. I get your हाँ, point. I do get yeah. your point. Yeah. So and you know like this thing कि हाँ 18 में इतना था और 24 में इतना हो गया, पर वो अभी भी 40% 50% के Exactly. आसपास है, तो Correct. वो भी एक दिक्कत है, पर वो रैंकिंग की भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, कि वो आई थिंक वी नीड बेटर इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग आउटकम्स, बट ऑल्सो वी शुड नॉट जज only learning outcomes for children. I think that is the bigger kind of point. It's a good starting point, but we tend to just get stuck on that because that's the only thing that's being done regularly. दूसरा आपने ब्रिज के बारे में कहा, and I do think it is quite a serious problem. बट अगेन ऑन एजुकेशन मेरा काम बहुत कम है। इत्तेफाक से हमने जी कोविड के दौरान एक छोटा सा सर्वे किया था, क्योंकि हमें टेंशन हो रही थी कि 2 साल हो गए स्कूल नहीं खुले। ये Right. WHO ने नहीं, यूनेस्को ने कहा था स्कूल शुड बी द लास्ट टू क्लोज एंड द फर्स्ट टू ओपन, और हमारा तो बिल्कुल ही उल्टा हिसाब था, द फर्स्ट टू क्लोज एंड द लास्ट टू रीओपन। Last to open. सो बिकॉज वी वर कंसर्न, तो उस समय हमें थोड़ा सा मौका मिला इन मुद्दों को समझने का। इसलिए भी उस चैप्टर में मतलब खुद की समझ कमजोर होने की वजह से बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रही। प्राइवेटाइजेशन आई थिंक काफी बड़ी चीज है, बड़ी समस्या है, खासकर प्राथमिक स्तर पर। आप इंडिया को अमेरिका के साथ कंपेयर करो, तो इंडिया में अब प्राथमिक स्तर पर निजी स्कूलों में नामांकन 40-45% के आसपास पहुंच गया। दिस इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का डेटा। और जो अमेरिका है, जिसे हम प्राइवेट का लैंड ऑफ व्हाटएवर समझते हैं, वहां पे प्राथमिक स्तर पर 10% से कम है निजी स्कूलों में। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब शायद ये बदलेगा, अब अभी डीओजी The latest news. आ गया है, डीओजीई की वजह से शायद कुछ बदलाव आए, Yeah. अलग बात है। लेकिन बहुत सारे विकसित देशों में प्राथमिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पे और इतना वेरिएशन है प्राइवेट स्कूल्स में, सबसे दुनिया के सबसे शायद अच्छे भी हों यहाँ पे, और बिल्कुल ही मतलब स्कूल कहलाने Low quality. लायक भी स्कूल नहीं है। हालांकि आरटी में काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, फिर भी वो किस हद तक उनका पालन हो रहा है, उस पे लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है, वो नहीं पता। सो मे बी आई कैन स्टॉप there, and there's this variation in state questions like what helps, and I think one of the things that helps a lot is education and awareness, that in states where there is education and awareness, in those states even poor people, from disadvantaged communities, somehow manage to claim their rights. मुझे ऐसे लगता है। अब इसके लिए कोई मेरे पास ना रिग्रेस इकोनोमेट्रिक स्टडी है ना कुछ है, मैं अपनी इम्प्रेशन और समझ के हिसाब से कह रही हूँ। तो मेरे ख्याल से उससे बहुत फर्क पड़ा है पिछले 10-20 सालों में, जब से हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, कि लोग फिर उनको समझ आए तो वो अपना लड़के भी लेना सीख लेते हैं। और उसके अलावा भी कुछ हद तक राज्य सरकारों की इन प्रोग्राम्स में रुचि बढ़ी है, उनको समझ आने लगी है कि अच्छे से करेंगे तो जीतने का मौका है, फिर से लौटने का मौका है, तो वो भी कहीं ना कहीं असर कर रहा है। तो टू मेक इट अ पॉलिटिकल इशू एंड टू कीप इट समथिंग दैट पॉलिटिशियंस केयर अबाउट हेल्प्स। Thank you so much. If anyone else has some very urgent question, they can ask now because we are already over our time. Does anyone else have any question? I Otherwise, think we this will. was too little time for us to be able to discuss Yeah, that's such why. an interesting book Yeah. in detail. I think
I mean I agree with मनिका. मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ अंत में कि हमारे स्टूडेंट्स को जो बेसिक माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं उनको अगर ये बुक अगर वो ये पढ़ेंगे तो शायद उनका जो सबसे जैसे अक्सर मुझसे जैसे एक बार एक सवाल पूछा गया था कि isn't inequality important for growth? हाँ हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस बुक विल बी एबल टू एटलीस्ट हाफ आंसर द क्वेश्चन इफ नॉट फुली. तो वो बहुत जरूरी बुक है ये, मुझे ऐसा लगता है बहुत सरल शब्दों में बताई हुई है. बट या थैंक यू. सॉरी या Also, the book is, since it's in Hindi and in quite an accessible manner written, so I think it's a good intervention in the general public also, other than students and scholars. So I hope on that level also it can make a good effect. I actually had a lot of other questions and directions in which to take it, but we will keep that for another day, especially actually in terms of this development studies practice kind of program and course also that we are trying to think through and launch. And right now we are in the process of making the course, structuring it, and so on. So one thing that was of great interest to me was over this last 20 years, how you and a lot of students have been involved in a lot of these surveys. And then Monica and I were discussing how basically without maybe making it too institutional also, and this has really worked as well. So, and this is has been a great basically learning experience for a lot of people, though that word is abused a lot, learning experience, but it has radicalized a lot of people into different realities and so on. So that is one conversation actually I want to have with you at some other point maybe, and the reflection on in fact the methodologies of it, of collaborative practices of doing research and so on, and then how it has affected others as well. And that is something we are looking to, I mean, hopefully integrate it in what we are trying to do. So, so at some point I'll get back to you, and probably in the Delhi center that the Jindal has, there we can do something, or so you don't have to travel so far to Sonipat. And we don't have to do it online because yeah. So thank you so much, Ritika, for Thank you joining. all. Thank you all Thank you for so being much. good readers. It was a very fun and interesting read. Thank you so much for writing this book. And I think maybe one can be done in the molding methods thing of the survey method and question that you're asking. That itself has been a method. Small surveys which are undertaken over a long time, Right. requiring continuous immersion. I mean, almost. Yeah. Thank you. Thank you Ritika. all. Bye. Thank you so much. Bye. 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 Stop recording. Hello, AV. AV. आप recording बंद कर सकते हो. We became quite short of time. And you have Yeah. another thing. Yeah, guest has already arrived. I need to run, but it was done. It was fine. I mean, in the time Yeah. given. Yeah. I Yes. might see you there. Yeah. Okay.